Assalamu alaikum. How are you, grade 10th? I hope you are all fine. Now we are going to start our lecture number 4. And this lecture has connection with the previous lecture. So the students, recall the previous lecture. In lecture number 3, we have studied that how gaseous exchange occur in humans. We have discussed that gaseous exchange in higher animals, including humans, takes place through a respiratory system. And that respiratory system consists of two parts. One is air passageway and the other one is lungs. We have a detailed discussion about air passageway in our previous lecture, in which we have studied the different parts of air passageway through which the air enters into the lungs. Now in our today lectures, we have to discuss the structure of lungs. So the students, there are pair of lungs in your body. जस्ट लाइक पेयर ऑफ किडनीज, जैसे आपकी बॉडी में 2 किडनीज होते हैं बेटे, 2 लंग्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अब जो बेटे लंग्स हैं आपके, लेफ्ट लंग जो है वो स्लाइटली स्मॉलर है. ओके, लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट वन. लेफ्ट लंग हैज 2 lobes and right lungs has 3 lobes and it is bigger than the left lung. So bete, now the question is, why left lung is smaller than the right one? Think about it. Why left lung is smaller than the right one? And the reason of it is that left lung is smaller due to the presence of heart. You know that your heart is present on the left side of your body. So basically lungs are elastic. Okay, lungs जो हैं वो elastic होते हैं. अगर बेटे ये elastic ना हो तो ये air passage, air pressure की वजह से rupture हो सकते हैं. Okay, and the lungs have blood vessels that are basically the branches of arteries and veins. Lung is enclosed by 2 membranes. Okay, there are 2 membranes which are present in lungs. Outer one is called outer pleural membrane and the inner one is called inner pleural membrane. Now the function of these 2 membranes, these membranes enclose a fluid which provides lubrication for the free expanding and contracting of the lungs. तो basically उसमें एक fluid present होता है जो उसको lubricate करता है. Lubricate means friction को reduce करता है, because lungs ने expand भी करना है और उन्होंने contract भी करना है. तो बेटे अगर वो lubrication नहीं होगी या lungs elastic नहीं होंगे, then due to the expansion of lungs due to air pressure, they may be rupture. जैसे बेटे आपके सामने एग्जांपल है ना, हम जो कार्स हैं, बाइक्स हैं, उनके इंजन्स को हम लुब्रिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयल. सो डैट सेम इज द फंक्शन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स. सो बेटे नाउ आई विल रिकॉल द टॉपिक ऑफ लंग्स. देयर आर 2 pair of lungs in your body. They are enclosed by 2 membranes. One is outer pleural membrane and the other one is inner pleural membrane. And structure बेटे इसका कैसा है? These are elastic and spongy. And I have told you left lung is smaller and has 2 lobes and the right one is larger and it has 3 lobes. So you can see your book on page number 6, the topic of lungs. All the alveoli on one side constitute a lung. There is a pair of lungs in the thoracic cavity. Thoracic cavity बेटे chest cavity को कहते हैं. The chest wall is made up of 12 pairs of ribs. Ribs बेटे पसलियों को कहते हैं. 12 pairs उसके present होते हैं. It means that there are total 24 ribs. And the rib muscles और ribs के साथ muscles जो होंगे, they are called intercostal muscles.
A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. We have detailed discussed diaphragm further in this lecture. The left lung is slightly smaller and has 2 lobes, and the right lung is bigger with 3 lobes. They are spongy and elastic organs. The lungs also have blood vessels that are the branches of the pulmonary arteries and veins. Each lung is enclosed by 2 membranes called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane. The membranes enclose a fluid which provides lubrication for the free expanding and contracting of the lungs. Now bete, we will move towards the mechanism of breathing. What is breathing? Breathing is basically the physical movement that is associated with gaseous exchange. ठीक है, इसमें आप जो एयर इनहेल करते हो और जो एयर एक्सहेल करते हो, तो वो बेटे आपकी फिजिकल मूवमेंट है जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं. बेसिकली इट हैज़ 2 phases. ओके बेटे, ब्रीथिंग हैज़ 2 phases. One is inhalation, that is also called inspiration, and the other one is expiration or exhalation. So first we will discuss about inspiration. इंस्पिरेशन जब होती है, मीन्स क्या है इसका, जब आप एयर को इनहेल करते हो तो आपकी बॉडी की क्या पोजीशन होती है. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. आपके जो रिब्स के मसल्स हैं, रिब्स मसल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिब्स जो हैं, आपकी चेस्ट कैविटी जो है वो रेज्ड हो जाती है. एट द सेम टाइम द डोम शेप्ड डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स. डायाफ्राम बेटे बेसिकली जो है आपकी रिब्स के नीचे एक लेयर सी प्रेजेंट होती है. ठीक है, एंड यू कैन सी इट ऑन पेज नंबर 8, फिगर नंबर 10.5 एंड 10.6. द फिगर 10.5 shows the steps of inhalation. तो बेसिकली इनहेलेशन में क्या होता है, दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी. आपकी जो चेस्ट कैविटी है ना, उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स. एरिया जब वो आपका इंक्रीज हो गया, उसके इंक्रीज होने की वजह से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है. रिड्यूस का मतलब होता है कम करना. एज ए रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड, और आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, एक्सपेंशन हो जाती है इसमें, एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो decreases. The air from outside rushes into the lungs to equalize the pressure on both sides. So बेटे lungs में प्रेशर कम हो जाएगा और lungs का इंटरनल प्रेशर और बॉडी का जो एक्सटर्नल आपका प्रेशर है चेस्ट कैविटी का, उसको इक्वलाइज करने के लिए जो एयर है वो फिर लंग्स में एंटर हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन. सो बेटे इनहेलेशन में क्या हुआ है, रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी रिब्स जो है वो रेज्ड हो जाती हैं. डायाफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो लोअर हो जाता है. अब इस मूवमेंट की वजह से जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है और वो लंग्स पे आपकी प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. एयर का भी जो प्रेशर होता है लंग्स में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स के अंदर चली जाती है ताकि दोनों साइड्स पे प्रेशर को मेंटेन किया जा सके. दीज आर द कंडीशंस दैट आर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. नाउ वी विल डिस्कस एक्सपायरेशन. उसमें क्या कंडीशन होती है आपकी बॉडी की, आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स. आपकी जो एयर है वो लंग्स में चली गई, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होगा, मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ऐड हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके लंग्स में जितनी होगी या ब्लड में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो लंग्स से एयर में आ जाएगी. गैसियस एक्सचेंज हो गया. अब जो इम्प्योर एयर होगी, ठीक है, अब जिस एयर ने आपकी बॉडी से बाहर आना है, दैट एयर इज इम्प्योर. इम्प्योर मीन्स इट हैज़ लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड. मीन ऑक्सीजन तो सारी वो हम लंग्स में आ गई ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होगी. द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन. द रिब मसल्स रिलैक्स. अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब रिब्स मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. जो रिब्स की आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी बिफोर कॉन्ट्रैक्शन,
वो आपकी मेंटेन हो जाएगी। द डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स, डायफ्राम के मसल्स भी रिलैक्स करेंगे एंड इट गेट्स इट्स रेज्ड डूम शेप, और वो अपनी जो ओरिजिनल शेप थी ना उस शेप में आ जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो, दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, जो आपकी चेस्ट कैविटी है ना बेटे उसकी स्पेस जो है वो कम हो जाएगी, लंग्स पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, और फिर लंग्स में कंट्रैक्शन होगी और एयर जो है वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगी। यू कैन सी द स्टेप्स ऑफ एक्सलेशन ऑन पेज नंबर 8 फिगर नंबर 10.6। सो बेटे अब हमने देखना है ह्यूमन ब्रीथिंग रेट जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में कितना होता है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितना होता है। मीन्स जब आप बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में हो, आप कुछ नहीं कर रहे, देयर इज़ नो ईटिंग और ड्रिंकिंग और थिंकिंग और रनिंग, कोई भी आप काम नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट पोजीशन पे हो, देन आपका ब्रीथिंग रेट क्या होगा और ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मीन्स एट रेस्ट। रेस्ट पोजीशन पे जो आपका ब्रीथिंग रेट है पर मिनट 16 to 20 टाइम्स है, ओके। एंड दिस रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ब्रेन, जो ब्रेन है वो इसको कंट्रोल करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अब ये जो सिस्टम है ना आपका बेटे सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से। आपने बेटे ये ऑब्जर्व किया होगा जब आप कोई बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज करते हो ना तो आपका सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप तेज़ी से आप सांस लेना शुरू करते हो। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना या हम रनिंग कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर होती है, ठीक है। जैसे अगर आप ज़्यादा काम करते हो, आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपकी फूड की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो इसी तरह से क्या है आपका ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली क्या होती है कि ऑक्सीजन के बगैर जो रेस्पिरेशन होती है ना उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। चैप्टर 7 में क्लास 9th में हमने इसमें डिटेल डिस्कशन की थी बेटे कि जो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन होती है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और बेसिकली ये मसल्स में होती है। जब आप रनिंग करते हो आपके मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, जब वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती देन फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और उस रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो जब आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है बेटे तो ये मैसेज फ़ौरन आपके ब्रेन को जाता है, ब्रेन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो आप तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फिर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब, आवर मसल सेल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन at greater rate. It results in the production of more carbon dioxide which is released in the blood. This greater than normal concentration of CO2 stimulates the respiratory system of brain. The respiratory center sends messages to the rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing so that the excess carbon dioxide प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी। क्योंकि बेटे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। हमें तो हमारी बॉडी को तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना वर्किंग के लिए, ब्रेन को भी वर्किंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जब एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो देन फ़ौरन से जो है वो मैसेज ब्रेन में जाता है और ब्रेन हमारे ब्रीथिंग रेट को फास्ट कर देता है ताकि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ओके बेटे 30 to 40 टाइम्स जो है वो ब्रीथिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सो बेटे अब क्लियर है कि रेस्ट पोजीशन पे ह्यूमन ब्रीथिंग रेट कितना है 16 to 20 टाइम्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इंक्रीजेज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। और ये बेटे आपके MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये दोनों आपके पॉइंट्स जो हैं। देन आप अपने पेज नंबर 7 पे आप कुछ ब्लू लाइन्स देख सकते हो। द ब्रीथिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री टू अ लार्ज एक्सटेंट, हाउएवर वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बेटे वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं कि जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो,
ठीक है, मीन्स आप अपनी मर्जी से खा सकते हो, आप चल सकते हो, आप सो सकते हो, ये आपके अपने कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं होते। आप ब्रीथिंग रेट को 1 मिनट तक मैक्सिमम कंट्रोल कर सकते हो। आप 1 मिनट के लिए भी अपना सांस जो है ना बेटे, उसको रोक नहीं सकते हो, उसको स्टॉप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके ये ब्रीथिंग मूवमेंट्स हैं तो बेसिकली ये बेटे इनवॉलेंट्री हैं। ठीक है, अब बेटे पेज नंबर 8 पे डिफरेंट परसेंटेजेस दी हुई हैं बेटे डिफरेंट गैसेस की, जो एयर आप इंस्पायर कर रहे हो उसकी, और जो एयर एक्सपायर्ड होगी उसमें क्या कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, ये टेबल भी आपने बेटे लर्न करना है। इंस्पायर्ड एयर जो है उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 21% होती है, लेकिन एक्सपायर्ड एयर जो बॉडी से बाहर आ रही होती है उसमें 16% होगी। ठीक है, एयर में 21% होती है ना, जब वो लंग्स में आएगी ऑक्सीजन जो है वो गैसियस एक्सचेंज हो गया, जो एक्स्ट्रा फिर आपकी जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में चली जाएगी और जो रिमेनिंग रह जाएगी वो 16% है। कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड एयर में 0.04% होती है, लेकिन जो एयर बाहर आ रही होती है क्योंकि वो आपके ब्लड की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव करती है, इसलिए उसमें ज़्यादा है, वो 4% हो जाएगी। जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ना ही एक्सचेंज नहीं होती हमारी बॉडी में, वो जैसे इंस्पायर्ड एयर में है 79%, वैसे ही वो एक्सपायर्ड एयर में होगी बेटे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। इंस्पायर्ड एयर में वो वेरिएबल हैं और एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड हैं। सिमिलरली जो अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल हैं और एक्सपायर्ड एयर में आलमोस्ट नन है। टेम्परेचर इंस्पायर्ड एयर का वेरिएबल है, लेकिन जो जब एयर आपकी बॉडी में चली जाएगी वो उस एयर का टेम्परेचर आपकी बॉडी के इक्वल हो जाएगा, डेट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो बाहर आएगी एयर तो देन उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। सो बेटे यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ lungs, you have to learn the topic mechanism of breathing. It is also included as a long question in your assignment, so listen the lecture carefully so you can solve your assignment. You have also learned all these topics plus table 10.1. So our today's lecture is end. God bless all of you. Allah Hafiz.